Yes, hi everyone. So, children, here I am making the video for 10th standard from geometry, the very first chapter, similarity. Okay. So, in this lecture, children, in this lecture, we are going to cover the very first unit, that is ratio of areas of two triangles. So, here before going to ratio, first let us discuss how to find the area of triangle. It is a revision for you children. So, whenever we listen about area of triangle, the very first formula that comes in our mind is area of triangle is half into base into height, the very common formula. And this formula is applicable whenever height is given to you. Height means altitude, that is perpendicular sign should be given. So, whenever height, you can see if the height is given in the triangle, so the formula that should come in, always comes in our mind is area of triangle is equal to half into base into height. So, here it becomes half into BC into AM. In case which there is one more formula children, for general triangle. So, area of triangle, but here you can see in this triangle ABC, their height is not given to you, but instead of height, all the three sides are given. Now, whenever three sides are given, the formula that comes in our mind is Heron's formula. Heron is a mathematician. The great Heron is a mathematician who discovered this formula. So, that is why this formula is named as Heron's formula. So, according to this formula, what it says, whenever the three sides are given, so it is very clear, since height is not given, I cannot use the first formula. So, here the formula, this formula comes for our help. So, what does it say? How to find that? First, we have to find S. Now, what is S children? S means semi perimeter. S means semi perimeter, half of the perimeter. You know children, perimeter formula is A plus B plus C. तो सेमी पेरीमीटर मीन्स उसका आधा अपॉन 2. तो सेमी पेरीमीटर ये फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है. और फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. चिल्ड्रन दिस फॉर्मूला इज जनरली ये चैप्टर में हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज just a revision, you already know 10th standard children, we expect that you know this formula. So, just for your revision I did this formula for you. Now, after knowing area of triangle, then the next part we are going to do is ratio of area of two triangle. Ratio means fraction. Ratio means fraction. अभी ratio दिया तो इतना clear है कि मुझे दो triangle दिया रहेगा, तो ratio of areas of two triangles. Okay, so I have to, here you can see the two triangles are given to you children, ABC and triangle PQR. Altitude is given to you, height is given to you, this height is AM and this height is PN. ये हाइट है कैसा मालूम पड़ा मुझे, परपेंडिकुलर साइन दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये हाइट है. सिमिलरली यहाँ पे हाइट क्या है, PN है. ओके, सो जैसा हाइट दिखा तो द फॉर्मूला दैट क्लिक्स योर माइंड इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो लेट अस अप्लाई दैट फॉर्मूला एंड फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ABC. So, area of triangle ABC is, I wrote the formula first, half into base into height, that is half into BC into AM. Similarly, this sign stands for similarly children. Area of triangle PQR is equal to half into QR into PN. You have to find the ratio of the area of triangle. So, दोनों area का ratio find out करो. So, ratio means area of triangle ABC upon area of triangle PQR. और इस तरफ उसका वैल्यू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम, या हाफ इंटू पी क्यू इंटू पी एन. हाफ ऑफ कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, हाफ ऑफ गॉट कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए एम अपॉन पी क्यू इंटू ए एन. ओके, सो दिस इज द सो हियर वी कैन सी व्हाई दिस हाफ ऑफ गॉट कैंसिल, कि दोनों जगह में न्यूमरेटर में भी हाफ है, डिनोमिनेटर में भी हाफ है, तो ये कैंसिल हो गया. जो बचा वो लिख दिया मैंने. अब इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम लोग कैसा लिखेगा? इफ B1 एंड H1 आर बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड B2, H2 आर बेस हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल विथ एरियाज A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली. एरिया ए रेस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का A1, सेकेंड ट्राइंगल का A2. तो ये फॉर्मूला हम लोग कैसा लिखेगा? अभी एरिया का जगह में फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया A1 लिया है और नीचे A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज B1, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज H1, तो B1 इंटू H1. सिमिलरली यहाँ पे B2 इंटू H2 आएगा. तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी चिल्ड्रन, दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2.
This is the very first property in your similarity chapter. Now come to second property. Now in this property, what different you can see from the previous one? Here you can see B1 equals to B2 means base are same. दोनों ट्राइंगल का बेस आर सेम. सेम मीन्स या फिर दे आर सेम या फिर दे आर कॉमन और दे आर कॉन्ग्रुएंट. तीनों से कोई भी एक हो सकता है. सेम एंड कॉन्ग्रुएंट मीन्स वन एंड द सेम थिंग चिल्ड्रन. सेम हो सकता है या फिर दे कैन बी कॉमन. सो द डायग्राम अगर बोला ऐसा ट्राइंगल कैसा दिखेगा, देखो ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया अभी. ये इन दिस कंडीशन यू कैन सी ट्राइंगल ABC का बेस BC है और PBC का बेस भी BC. तो यहाँ पे कौन सा आएगा? कॉमन बेस आएगा. सो द बेस इज कॉमन. So when the base is common, so what changes can come over here? So let us see over here. A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. तो बेस का जगह में दोनों सेम है ना, तो दोनों बेस को मैंने B1 लिखा, B1 इंटू H1 और इधर मैंने फिर से B1 इंटू H1 लिखा. बोथ आर सेम. तो B1 कैंसिल हो गया. तो क्या बचा? H1 अपॉन H2. सो सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हाट डज द सेकेंड प्रॉपर्टी से चिल्ड्रेन? इफ द बेस ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर सेम, then the ratio of the area of the triangle becomes the ratio of their corresponding height. Means A1 upon A2 हो जाएगा H1 upon H2. रीजन क्या है? इसका बेस कॉमन है बोल के. Now come to third property. What does this third property say? If H1 is equal to H2, उसका मतलब either both the heights are congruent या फिर दोनों common height share करते. They share the common height. So now come to third property. इन दिस थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट इज डिफरेंट ओवर ये? जैसा कि सेकेंड प्रॉपर्टी में बेस सेम था, तो यहाँ पे आपका हाइट सेम है. हाइट सेम भी हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती है. सेम मीन सेम एंड कॉन्ग्रुएंट वन एंड द सेम थिंग, या फिर कॉमन भी हो सकती है. ओके तो अभी यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, फर्स्ट वाला तो यहाँ पे क्लियरली H1 इज इक्वल टू H2. आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है. व्हाट डज द फॉर्मूला से? सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 और आपका हाइट आर सेम, तो मैं दोनों हाइट के जगह में आई विल राइट H1 आई विल राइट H1 क्योंकि दोनों का हाइट सेम है. तो H1 कैंसिल हो गया. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड प्रॉपर्टी. सो व्हाट आई कैन कंक्लूड इन द थर्ड प्रॉपर्टी? इफ द हाइट ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉमन और कॉन्ग्रुएंट, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग base when the heights are equal. This is the third property. चलो डायग्राम बोलो तो एक डायग्राम मैंने एग्जांपल ऐसा, यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ABC दिख रहा है और एक ABM दिख रहा है. दोनों का बेस अलग है. इसका बेस BC, इसका बेस BM है, लेकिन दोनों बोथ ऑफ दम लाइज अंडर द पैरेलल लाइन. तो इसका हाइट हो गया ये दिस इज द हाइट ऑफ दिस और इसका हाइट ये हो गया. तो ये दोनों हाइट सेम ही होगा. क्यों सेम होगा? बिकॉज पैरेलल लाइन के बीच में जितना भी चाहे परपेंडिकुलर बना उसका लेंथ सेम ही होता है. तो दैट्स वाई एक मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है चिल्ड्रन. ऐसा वाला सम आपको मिलेगा एक्सरसाइज में. तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. एंड नाउ चिल्ड्रन कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी. ओके द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. सो ये चारों प्रॉपर्टी अगर आपका क्लियर हो गया तो देन वी आर गोइंग टू देन यू कैन ईजिली सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1. सो ये चिल्ड्रन अभी यहाँ पे क्या डिफरेंट है? पहला वाला प्रॉपर्टी में तो कुछ भी डिफरेंट नहीं, सब दोनों भी सेम नहीं था. सेकेंड प्रॉपर्टी में बेस कॉन्ग्रुएंट था. थर्ड प्रॉपर्टी में हाइट कॉन्ग्रुएंट. अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में बेस भी कॉन्ग्रुएंट है और हाइट भी कॉन्ग्रुएंट है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 अपॉन H2. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ इन दिस केस इन द सेंस B1 एंड B2 आर सेम, इवन H1 एंड H2 आर सेम, तो B1 इंटू H1 यहाँ पे भी मैं B1 इंटू H1 ही लिखने वाली. दैट इज A1 अपॉन A2 विल बिकम, दोनों कैंसिल हो जाएगा, B1 H1. तो क्या बचा? 1 अपॉन 1. सो हियर बिकम्स द एरिया ऑफ both the triangles will be equal. A1 will be equal to A2. So just repeat this video and write all the four properties together. Once again I am writing for you children. The first property is A1 upon A2 is equals to B1 into H1 upon B2 into H2. Second property is A1 upon A2 is equals to H1 अपॉन H2. क्यों? क्योंकि इसका B1 और B2 इक्वल था, कैंसिल हो गया. थर्ड प्रॉपर्टी इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. क्यों?
क्योंकि इसका H1 इक्वल टू H2 था। और फोर्थ प्रॉपर्टी इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 because both are equal, B1 equal to B2, H1 is equal to H2. These are the 4 properties, children. I wrote all the 4 properties together. After going through all these 4 properties, we are going to solve practice set 1.1. Children, that you will get in my next video. Thank you, children.